Good morning, students. Welcome back to our English grammar class. We have already done simple tense, perfect tense, simple and continuous tense. Now in this session we are going to do perfect tenses. We have done simple present, simple past and simple future. Present continuous, past continuous and future continuous. Now we are going to do perfect, present perfect, past perfect and perfect future perfect. So let's get started. First of all, present perfect tense. Present perfect tense. Present perfect tense expresses actions which have taken place recently. In present perfect tense, the verbs express actions which have recently taken place. And one more thing, student, in perfect tense, हम perfect tense में past participle form of the verb use करेंगे, that is the V3 form. इसीलिए मैंने आपको लास्ट सेशन जो वीडियो था उसमें मैंने आपको पूरा लिस्ट दिया था जिसमें past form and past participle form of the verbs were given. तो परफेक्ट टेंस में मेन क्या है, हम हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव यूज़ करेंगे प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब. सो द form for the affirmative sentence or the simple sentence, it will be subject plus have has plus past participle. If the subject is singular, we will use has, and if the subject is plural, we will use have and past participle form of the verb. Like the Indian players have gone to the field. The Indian players is a plural, so we have used have, and gone is the past participle of go. Okay, go का past participle है gone, इसलिए हमने लिखा है gone. Like second one is the cricket match has just begun. The cricket match has just begun. Has क्योंकि singular है and begun is the past participle of begin. Understood? Like I have tried sushi before. I have I के साथ हमेशा have जाता है and tried is the past participle of try. And in this negative sentences we just write not. Have and has के बाद हम not add करते हैं and that past participle. Like I have not tried sushi before. I have not done my homework. She had not sang. He had not rang the bell. Okay? He has not rang the bell. Understood? Then interrogative में हम क्या करते हैं, verb plus subject plus third form of the verb or the past participle. जो helping verb है हमारा has, have या had plus subject and then the past participle. Like have you tried sushi before? Have is the verb, you is the subject and tried is the past participle. Okay, have I walked? Understood? So based on this exercise number 1 which is in your textbook page number 93, you have to complete the letter by using the present perfect tense. Like I am sorry I had dash for a long time. तो I के साथ हमेशा have जाएगा, तो I have not written, right का past participle हो जाएगा written. I have received your letter a week ago. A lot of things dash happened since then. Have happened because things is a plural, so have happened. Past participle form of happen is happened. Last week Samir, his cousins and I went to Jaipur. It was a great fun. I have never had such a good time. We visited the Amba Fort and Jaipur Palace. Jaipur is famous for handicrafts and I have bought some dress materials. I have bought for you and mother. I also have picked up a mirror work skirt for Anu. Our guide has promised to take us Jodhpur also and we are looking forward to it.
Okay, the verbs are given in the bracket and you have to use the past participle form. I have given you the answers, but try to do it yourself, and this exercise you have to do it in your textbook itself. Then past perfect tense. In past perfect tense, the verbs express actions which had been completed or happened in the past. एंड पास्ट परफेक्ट में बहुत ही सिंपल है, आपको सिर्फ हैड लगाना है, हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल. प्रेजेंट में हैज़ या हैव, पास्ट में हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल. लाइक ही हैड फिनिश्ड द टेस्ट व्हेन द बेल rang. The bus had already left. We had gone to the party. Suddenly they remembered they had forgotten. Forgotten is the past participle and had is the auxiliary verb we are using in perfect tense. And if you want to make the interrogative, it is verb plus subject plus past participle. Like had he finished the test? Had is the verb, he is the subject, and finished is the past participle of finish. Okay students, on this basis, exercise number 2, which is on your page number 93, you have to complete the following passage using the past perfect tense plus a verb from the box. Past perfect tense means you have to use had and a verb from the box. Box में से आपको word choose करना है as which is suitable in the fill in the blanks, and you have to fill in the blanks by writing the past participle form of the verb. Like I met my friend Kabir in the park as we had arranged. We had not seen each other for a fortnight. After I had taken a photograph, I put my camera on the bench. We talked about things we had done during the past fortnight. Okay students, I have given you the answer, but try to आप पहले देखो कि कौन सा इसमें वर्ब जाएगा और उसके बाद उसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आपको करना है. देन फ्यूचर परफेक्ट. व्हाट इज फ्यूचर परफेक्ट? फ्यूचर परफेक्ट हम कब यूज़ करते हैं? इन फ्यूचर परफेक्ट द वर्ब्स आर इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस. दे एक्सप्रेस एक्शंस विच विल बी कंप्लीटेड इन द फ्यूचर, जो फ्यूचर में कंप्लीट होने वाली है और ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है. लाइक एंड इसमें क्योंकि फ्यूचर है, सो वी विल ऐड शैल प्लस वी प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म. ओके, इसमें हम क्या करेंगे? शैल प्लस शैल या विल यूज़ करेंगे क्योंकि फ्यूचर है, प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब. लाइक आई शैल हैव गॉन होम. Shall plus have plus gone home. My daughter will have left for Mumbai. All the boys will have finished their game. तो फ्यूचर परफेक्ट भी एकदम सिंपल है, उसमें आपको हैज़ हैव कुछ नहीं करना है. सिंपल हैव, विल या शैल प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल. ओके, एंड फॉर नेगेटिव यू विल ऐड नॉट बिफोर आफ्टर हैव. लाइक I will have not left for the picnic. And अगर if you want to do the interrogative, उसमें verb plus have plus verb plus subject plus past participle. Like will he have walked? Understood? So on this basis, on page number 94, you have an exercise number 3 in which change the following sentences into future perfect tense. One is done for you. Like when I reached London, she had been away for 6 days. Okay, तो आपको इसको past tense में future perfect में करना है. So when I reached London, she will have been away for 6 days. Understood? सेकेंड में आपको करा देती हूँ. आई हैव डन माई वर्क बिफोर यू अराइव्ड. ओके, क्योंकि ये फ्यूचर में होने वाली है तो इसका क्या होगा? बिफोर यू अराइव आई विल हैव डन माई वर्क. अंडरस्टूड? थर्ड इज व्हेन आई रीच द थिएटर द प्ले हैड ऑलरेडी बिगन. हैड है मीन्स इट इज रिटन इन पास्ट परफेक्ट टेंस.
you have to change it to future perfect. Okay, so you can write, when I reach the theater the play will have already begun. आपको इसमें पास्ट पार्टिसिपल भी दिया है, सिर्फ आपको क्या ऐड करना है, विल हैव. ओके, इस तरीके से ये एक्सरसाइज आपको अपनी टेक्स्ट बुक में करना है. दिस एक्सरसाइज यू हैव टू डू इट इन योर टेक्स्ट बुक. ओके स्टूडेंट्स, and I have given you the answers, you can write down in your notebook. Then exercise number 4, tick the number of the correct tense of the verb in the following sentences. Now the lamp has vanished from the field. ओके, तो आपको सेंटेंसेस में आपको फॉर्मूलाज याद होना चाहिए. अगर सेंटेंस में हैज़ आता है दैट मीन्स इट इज़ अ परफेक्ट टेंस. ओके, दैट मीन्स इट इज़ अ परफेक्ट टेंस. हैज़, हैव या हैड आता है तो इट इज़ अ परफेक्ट टेंस. अब अगर हैज़ है तो वो हैज़ किस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट में. सो फर्स्ट आंसर इज योर प्रेजेंट परफेक्ट. देन द सेकेंड, द बर्ड्स विल बी बिल्डिंग देयर नेस्ट देन. आपको पहले वर्ब को अंडरलाइन कर देना है. वर्ब क्या है यहाँ पर, बिल्डिंग. ओके, आईएनजी वाला है, दैट मीन्स इट इज़ कंटिन्यूअस टेंस. आपको कोई भी सेंटेंस मिले उसमें पहले आपको वर्ब को अंडरलाइन कर दो, फिर उसके आगे देखो. यहाँ पर वर्ब क्या है, बिल्डिंग. आईएनजी वाला है तो दिमाग में स्ट्राइक हो जाना चाहिए कि आईएनजी वाला वर्ब जो है वो कंटिन्यूअस टेंस में आता है. ओके, कंटिन्यूअस टेंस. अब हमको जानना है कि ये प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है. तो उसके आगे देखो, उसमें क्या लिखा है, विल बी बिल्डिंग. विल किस में यूज़ होता है, फ्यूचर में. सो योर दिस आंसर विल बी फ्यूचर कंटिन्यूअस. अंडरस्टूड. देन थर्ड, द विंड हैड बीन ब्लोइंग हार्ड. अगेन अंडरलाइन द वर्ब. वर्ब क्या है इसमें, ब्लोइंग. आईएनजी वाला फॉर्म है. ओके, नाउ आईएनजी वाला फॉर्म है और उसमें उसके आगे क्या लिखा है, हैड बीन. अब हैड कहाँ यूज़ होता है हमारा, परफेक्ट टेंस में. ओके, एंड परफेक्ट के बाद बिन लगाया हुआ है, दैट मीन्स इट इज़ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. ओके, देन फोर्थ, दे हैव बीन स्विमिंग सिंस मॉर्निंग. स्विमिंग, हैव बीन स्विमिंग सिंस मॉर्निंग. हमारा यहाँ पर वर्ब क्या है, स्विमिंग. आईएनजी वाला वर्ब है, दैट मीन्स इट इज़ कंटिन्यूअस. हैव बीन, बीन किस में यूज़ होता है, हम परफेक्ट कंटिन्यूअस में. ओके, तो क्या हो जाएगा, हैव किस में यूज़ होता है, प्रेजेंट. तो इट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. द बोट वॉज संक बाय अ स्टॉर्म. ओके, द बोट वॉज स्ट्रंक बाय अ स्टॉर्म. वॉज किस में यूज होता है, सिंपल पास्ट में. सो दिस सेंटेंस इज सिंपल पास्ट. वी गो टू अ मूवी वंस अ वीक. वी गो टू अ मूवी वंस अ वीक. वर्ब क्या है, गो. मेन फॉर्म में है, आगे कुछ भी नहीं है, सब्जेक्ट है, दैट मीन्स इट इज सिंपल प्रेजेंट. वेयर विल यू बी स्टेइंग इन लंडन. वर्ब क्या है यहाँ पर हमारा, आईएनजी वाला, स्टेइंग, दैट मीन्स इट इज़ कंटिन्यूअस. उसके आगे क्या है, विल यू बी. विल कहाँ यूज़ होता है, फ्यूचर में. सो इट इज़ फ्यूचर कंटिन्यूअस. एंड द लास्ट वन इज, दे हैड बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट द होल मंथ. व्हाट इज योर वर्ब हियर, वर्किंग. इट इज़ इन द आईएनजी फॉर्म, सो इट इज़ अ कंटिन्यूअस टेंस. अब कौन सा है, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर. तो हैड बीन वर्किंग, हैड किस में यूज़ होता है, पास्ट में. सो योर आंसर इज हैड बीन वर्किंग, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. ओके, इन दिस वे यू हैव टू डू दिस एक्सरसाइज इन द टेक्स्ट बुक इटसेल्फ. ये एक्सरसाइज आपको टेक्स्ट बुक में ही करना है. नाउ अब हमने सारे टेंसेस कर लिए हैं, तो हम लेसन नंबर 16 जो टेंसेस पे बेस्ड है हम वो अब कंप्लीट करेंगे. ओके, मैंने पहले टेंसेस क्यों लिया, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि टेंसेस होते क्या हैं. उसके बाद आप आराम से रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि कौन सा जो वर्ड है वो टेंसेस में जाता है. ओके, सो बेसिकली देयर आर 3 मेन टेंसेस, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. ओके, बेसिकली देयर आर 3 टेंसेस, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. एंड suppose I say I love. I love simply verb love simply expresses the action done in the present time without indicating the state of action. I love, उसमें कोई टाइम या कुछ भी नहीं दिया है, so it is a simple present tense. But if I say I am loving,
तो इट शोज द एक्शन इज स्टिल गोइंग ऑन, तो वो हो जाता है कंटिन्यूइंग, दैट इज am plus ing, that is present continuous tense. Okay, and the third is she. If I say I have learned, I have loved, shows that an action is complete, finished or perfect. और have कहाँ यूज़ होता है? परफेक्ट टेंस में यूज़ होता है. सो दिस इज इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. और अगर मैं कहूँ आई हैव बीन लविंग, ing वाला फॉर्म है, सो कंटिन्यूस. हैव बीन हमेशा परफेक्ट कंटिन्यूस में आएगा. हैव बीन है आगे, दैट मीन्स इट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. ओके, सो इसी तरह से आप कोई भी टेंस में सेंटेंस दिया हो उसको आप चेंज कर सकते हो. जैसे अगर मैंने लिखा है आई लव, उसको मैं पास्ट परफेक्ट में भी कर सकती हूँ. पास्ट परफेक्ट में आई हैड लव्ड, फ्यूचर परफेक्ट में आई शैल हैव लव्ड. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में करना हो तो आई हैड बीन लविंग. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में करना हो तो आई शैल हैव बीन लविंग. ओके, इसी तरह से आपको सेंटेंसेस करना है. नाउ इसमें आपको पेज नंबर 76 पर आपको एक्सरसाइज दिया है. रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस पुटिंग ऑल द वर्ब्स इन द पास्ट टेंस. सिंपल. इसमें आपको पहले तो क्या करना है? वर्ब निकालना है, वर्ब ढूंढ निकालना है, ठीक है. और फिर वो वर्ब को आपको पास्ट टेंस में कर देना है. जैसे फर्स्ट दिया है यहाँ पर, अ कोल्ड ब्रीज ब्लोज एवरी मॉर्निंग. ओके, अ कोल्ड ब्रीज ब्लोज एवरी मॉर्निंग. तो कोल्ड इसमें क्या है हमारा? वर्ब क्या है? ब्लोज. ओके, और ब्लोज का पास्ट टेंस क्या होता है? ब्लू. तो आपको सिर्फ वर्ब को चेंज करना है. A cold breeze blew, B-L-E-W, blew every morning. Okay. Second is our team wins almost every match. First of all, find out the verb. टेंसेस में हमेशा वर्ब को फाइंड करना है, उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि वो कौन से टेंस में है सेंटेंस. आवर टीम विन्स ऑलमोस्ट एवरी मैच. विन्स क्या है? हमारा वर्ब है. कौन सा टेंस है ये? सिंपल प्रेजेंट. ओके, अब विन का पास्ट टेंस क्या हो जाएगा? वोन. तो आवर टीम वोन ऑलमोस्ट एवरी मैच. थर्ड, शी कंटिन्यूअली कफ्स एंड स्पिट्स. कंटिन्यूअली कफ्स एंड स्पिट्स. यहाँ पर हमारा वर्ब क्या है? कंटिन्यूअली. ओके, सॉरी, कफ्स एंड स्पिट्स. तो इसका क्या हो जाएगा? शी कंटिन्यूअली कफ्ड एंड स्पेट. कफ का हो जाएगा कफ्ड, ed, एंड स्पिट का हो जाएगा स्पेट. फोर्थ इज आई ड्रिंक टी एवरी मॉर्निंग. वर्ब इज ड्रिंक. ड्रिंक का पास्ट टेंस क्या हो जाएगा? ड्रैंक. तो आई ड्रैंक टी एवरी मॉर्निंग. फिफ्थ इज शी स्वीप्स हर रूम एवरी डे. व्हाट इज द वर्ब? स्वीप्स. स्वीप का पास्ट टेंस क्या है? स्वेप्ट. सो your answer will be she swept her room every day. Sixth, water freezes in winter. What is the verb? Freezes. Freezes का past tense क्या है? Froze. Then your answer will be water froze in winter. और froze का past participle क्या है? Frozen. Okay. The sun rises in the east. The sun rose in the east. He lies down and sleeps. He lay down and slept. She sits down and spins the thread. She sat down and spun the thread. They forget what they learned. They forgot what they learned. The soldiers fight and win. The soldiers fought and won. She always gets up first of all, wakes up her servants and then lights the fire. So in 12th the answer will be she always got up first, woke up her servants and then lit the fire. In this way, this exercise you have to do in your classwork notebook. Okay. Then I have given you the answers. You can check your answers. But student, I have been telling you each and every time, हर बार मैं आपसे कहती हूँ कि क्या करना है? नाउन और वर्ब को ढूंढना है सेंटेंस में.
अगर टेंसेस है तो आपको वर्ब्स ढूंढना है, अगर आपको वर्ब ढूंढना है या तो आपको क्या करना है, नाउन्स ढूंढने हैं या सब्जेक्ट ढूंढना है। लेकिन जहाँ पर टेंसेस स्टार्ट होते हैं वहाँ पर आपको वर्ब ढूंढना है। वर्ब अगर आप ढूंढ लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो सेंटेंस कौन से टेंस में दिया गया है। ओके, देन सेकेंड एक्सरसाइज which is on the same page number 77. Rewrite the following sentences changing the verbs to the present continuous or past continuous tense. आपको या तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में करना है या पास्ट कंटिन्यूस में करना है, ठीक है। तो इसमें भी सबसे पहले आपको क्या करना है, वर्ब को ढूंढ निकालना है। जैसे फर्स्ट वन है ही लाइज डाउन ऑन द ग्रास, यहाँ पर हमारा वर्ब क्या है, लाइज। और अगर आपको वर्ब ढूंढना है तो या तो आप क्या कर सकते हो, पहले सब्जेक्ट को ढूंढो या नाउन को ढूंढो। सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही के बाद आएगा वर्ब लाइज। लाइज अब हमको कंटिन्यूस में करना है, कंटिन्यूस में क्या हो जाएगा, ing। ओके, ing फॉर्म ऑफ द वर्ब, और उसका फॉर्मूला क्या है प्रेजेंट कंटिन्यूस का, इज, आर और एम प्लस ing फॉर्म ऑफ द वर्ब। अगर आई है तो आई के साथ एम जाएगा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज प्लस ing, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर प्लस ing। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही इज लाइंग डाउन ऑन द ग्रास। ओके, सेकेंड द बॉय लीन्स अगेंस्ट द ट्री। व्हाट इज द सब्जेक्ट हियर, द बॉय। उसके बाद आएगा वर्ब, वर्ब क्या है, लीन्स। लीन का ing फॉर्म क्या है, लीनिंग। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हम क्या करेंगे, द बॉय इज लीनिंग अगेंस्ट द ट्री। अ कोल्ड विंड ब्लोज, अ कोल्ड विंड ब्लोज, वर्ब क्या है, ब्लो। ब्लो का ing वाला फॉर्म हो जाएगा ब्लोइंग, एंड ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हो जाएगा अ कोल्ड विंड इज ब्लोइंग। ओके, देन फोर्थ इज ही वर्क्स हार्ड फॉर हिज एग्जामिनेशन। यहाँ पर वर्ब क्या है, वर्क, तो वर्क का वो हो जाएगा ing वाला फॉर्म, और ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो हो जाएगा ही इज वर्किंग हार्ड फॉर हिज एग्जामिनेशन। ओके, नाउ फिफ्थ इज द प्यून रैंग द बेल। ओके, रैंक जो है वो हमारा पास्ट टेंस का सेंटेंस है, तो पास्ट टेंस वाला सेंटेंस हमको करना है पास्ट कंटिन्यूअस में। रैंक का क्या हो जाएगा, रिंगिंग, और पास्ट कंटिन्यूअस में क्या यूज़ करते हैं, वॉज, वर प्लस ing फॉर्म। अगर सिंगुलर है तो वॉज, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर, तो ये क्या हो जाएगा, द प्यून वॉज रिंगिंग द बेल। सिक्स, द लीव्स फेल टू द ग्राउंड, द लीव्स वर फॉलिंग टू द ग्राउंड। सीता sang sweetly, सीता is singing sweetly और सीता was singing sweetly। आप किसी भी फॉर्म में कर सकते हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में या पास्ट कंटिन्यूअस में। फर्स्ट वाला भी हम कर सकते हैं, जैसे ही लाइज डाउन ऑन द ग्रास, तो ही इज लाइंग डाउन ऑन द ग्रास, ही वॉज लाइंग डाउन ऑन द ग्रास। Second, the boy leans against the tree, the boy is leaning against the tree or the boy was leaning against the tree। ओके, आप कोई भी टेंस में कर सकते हो, बट स्टूडेंट ट्राई टू डू इन बोथ द टेंसेस। मैंने आंसर सिर्फ या तो एक ही में दिया है, बट आप प्रेजेंट में भी करो और पास्ट में भी करो, क्योंकि टेंसेस में आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको उतना ही आएगा। Okay, then the third exercise is rewrite the following tenses changing the verbs to the present perfect or past perfect tense। Okay, a perfect tense means you have to use the past participle form of the verb। Understood? तो आपको सबसे पहले क्या करना है, वर्ब ढूंढ निकालना है, फिर उसका पास्ट पार्टिसिपल करना है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट करोगे तो हैज़, हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। हैज़ हम सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज़ करेंगे और हैव हम प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। ओके, एंड अगर पास्ट परफेक्ट करना है तो इट इज़ वेरी सिंपल, हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल। ओके, सो अगर आपको यहाँ दिया गया है सेंटेंस द स्काई ग्रोज डार्क, यहाँ पर हमारा वर्ब क्या है, ग्रोज, उसका पास्ट पार्टिसिपल क्या हो जाएगा, ग्रोन। तो अगर मैं प्रेजेंट परफेक्ट लिखूँ तो मैं करूँगी द स्काई हैज़ ग्रोन डार्क, और पास्ट परफेक्ट में क्या हो जाएगा, द स्काई हैड ग्रोन डार्क।
ओके। द डॉग लाइज ऑन द फ्लोर, वर्ब क्या है, लाइज। लाइज का पास्ट पार्टिसिपल होगा ले, तो मैं क्या लिखूंगी, अगर मुझे प्रेजेंट परफेक्ट करना है, द डॉग हैज़ लेन ऑन द फ्लोर, और अगर पास्ट परफेक्ट करूंगी तो द डॉग हैड लेन ऑन द फ्लोर, ओके। थर्ड इज द बर्ड फ्लाइज, the third sentence is the bird flies out of the cage। यहाँ पर हमारा वर्ब क्या है, फ्लाइज, ओके। फ्लाइज हमारा वर्ब है, पास्ट पार्टिसिपल इसका हो जाएगा फ्लोन। अगर मैं प्रेजेंट परफेक्ट करती हूँ तो हो जाएगा द बर्ड हैज़ फ्लोन आउट ऑफ द केज, और पास्ट परफेक्ट में द बर्ड हैड फ्लोन आउट ऑफ द केज, ओके। वी हर्ड अ स्ट्रेंज स्टोरी, we heard a strange story, we have heard a strange story, or we had heard a strange story। The boys the boys are playing football, the boys have played football, or the boys had played football। Sita worked the sum correctly, Sita had worked the sum correctly। He tries hard and succeeds, he have tried hard and succeeded, he has tried hard and succeeded, or he had tried hard and succeeded। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपको ये टेक्स्ट एक्सरसाइज आपको क्लास वर्क नोटबुक में करना है। देन एक्सरसाइज नंबर 4 विच इज़ ऑन योर पेज नंबर 78, आपको चूज़ करना है करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट वन इज मोहन डैश योर कार टू नाइट, टू नाइट है मीन्स कंटिन्यूस में जाएगा। विल यू बी यूजिंग, यू आर यूजिंग, योर आर यूजिंग तो आएगा ही नहीं, यू यूजिंग भी नहीं आएगा क्योंकि यू के साथ विल के साथ हमेशा बी जाएगा। तो मोहन विल यू बी यूजिंग योर कार टू नाइट, क्योंकि हम ये सेंटेंस अगर बनाएंगे मोहन यू यूजिंग योर कार टू नाइट, इट डजंट मेक एनी सेंस, ओके। तो अगर आपको सूट, आप देखो कि कौन सा वो ब्लैंक में सूट करता है। देन द सेकेंड इज द नर्स डैश अ क्लोज वॉच ऑन द बेबी टिल नेक्स्ट वीक, ओके। तो टिल नेक्स्ट वीक मीन्स फ्यूचर तक होगा। सो आर कीपिंग जाएगा नहीं क्योंकि आर प्लूरल के साथ लगता है, नर्स हमारा जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। विल बी क्लिपिंग अ क्लोज वॉच ऑन द बेबी कंटिन्यूस नहीं है, फ्यूचर में जाएगा, ठीक है। द नर्स विल कीप अ क्लोज वॉच ऑन द बेबी टिल नेक्स्ट वीक। द पुलिस डैश द केस फ्रॉम मंडे, मीन्स मंडे से करने वाली है, ओके। तो द पुलिस विल बी इन्वेस्टिगेटिंग द केस फ्रॉम मंडे। In this way you have choose the correct answer. I have already given you the correct answers. Whichever exercise you have to write down in your text classwork notebook, write it down. And exercise number which is on your page number 77, exercise number 2 and 3, ओके। प्रेजेंट एक्सरसाइज नंबर 2 में आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस में करना है, आइदर प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस। तो आप दोनों में ही करके ट्राई करो, क्योंकि आप जब दोनों में ट्राई करोगे तो आपको ईजी हो जाएगा करना, ठीक है। एंड उसी तरह से एक्सरसाइज नंबर 3 जो है उसमें भी आप प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट दोनों में कन्वर्ट करो सेंटेंसेस को। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम जस्ट revise the video and understand it properly.